ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا کیا، بے شمار انگنت فرشتوں کو پیدا کیا، جس کی حقیقی گنتی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، کسی نبی کسی ولی کو اس کا علم اللہ نے نہیں دیا۔ فرشتے کتنے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا۔ انسان خود اپنے بارے میں سوچے کہ ہر ایک انسان کے پاس کئی فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہمیشہ جو ہے کتب لکھتے رہتے ہیں۔ اگر 2 فرشتوں کو ہم جوڑے تو کتنا نہ ہو جائے گا۔ اور پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ بیت معمور میں جو فرشتہ ایک مرتبہ جاتا ہے تو دوسری مرتبہ اس کی نوبت نہیں ہوتی، اور ایک دن میں کم سے کم 70,000 فرشتے جاتے ہیں۔ تو اس حساب سے کتنے فرشتے ہوں گے ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں، ان فرشتوں کا علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے، جو کبھی بھی اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کرتا، ہمیشہ فرما برداری میں جھکے ہوئے رہتا ہے، ہمیشہ فرما برداری میں وہ لگے ہوئے رہتا ہے۔ فرشتوں کی جو ذات ہے وہ کافی اللہ کی فرما برداری میں جھکے ہوا ہے، جو ہی حکم ملتا ہے وہ بجا لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہے تھے، فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ آپ ایسے مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر خون ریزی کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، آپس میں رنجش کرے گا، آپس میں لڑے گا۔ اے اللہ کیا میں آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہوں؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہمیشہ سجدے میں ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ آپ جو ہی کوئی حکم دیتے ہیں ہم بجا لاتے ہیں، پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو پیدا کیا ہے وہ نور سے پیدا کیا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ان میں سے 4 فرشتے مقرب ہیں، 4 فرشتے بڑے ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی کام سونپے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ جو سب سے بڑا ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے، جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، دوسرا حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، تیسرا حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، چوتھا حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ آپ ذرا سا غور کریں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے نبیوں کے پاس اللہ کے حکام کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کی باتوں کو پہنچایا کرتے تھے، وہی لے کر کے آیا کرتے تھے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد ان کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ اللہ کسی نبی سے کوئی بات کہنا ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہی بھیج دیتے اور بتا دیتے۔ جبرائیل آ کر کے جیسے اللہ حکم دیتا ویسے آ کر کے اس نبی کو بتا دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا فرشتہ بڑے فرشتوں میں حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمہ بھی کئی کام دیے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اللہ جہاں پر حکم دیتے ہیں وہ بارش برساتے ہیں، مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر متعین ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میکائیل کو حکم دیا ہو کہ فلاں جگہ بارش برساؤ اور وہ بارش نہ برسایا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت میکائیل کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں علاقے میں بارش برسانا ہے، میکائیل فوراً بارش حاصل کر دیتا ہے۔ مخلوق کو کتنا روزی پہنچانا ہے اللہ حکم دیتا ہے، میکائیل فوراً جو ہے اس چیز کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرشتہ جو مقرب فرشتوں میں سے ہے اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا۔ میں نے چوتھا فرشتہ گنایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو تمام ذی روح کی روح نکالنے کے لیے متعین ہیں، ذی روح کی روح نکالنے کے لیے متعین ہیں، چاہے بچے ہو یا بڑے، نوجوان ہو کوئی بھی ہو، جتنے بھی مخلوقات ہیں جس کے اندر روح پائی جاتی ہے وہ تمام کی روح نکالنے میں متعین ہے۔ جو ہی اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں صاحب کی روح قبض کرنی ہے، وہ سیکنڈ برابر بھی ٹائم نہیں کرتے، بغیر وقت بتائے فوراً جا کر کے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ یہ وہ 4 فرشتے ہیں۔ میں نے 3 فرشتوں کے کام بتائے اور جو تیسرا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو میں نے گنایا، یہ صرف ایک کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ ہاتھ میں ایک سینگ لیے ہوئے، ایک سور لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے سامنے کان لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب مجھے حکم دے دے، کب مجھے کہہ دے
दो, कयामत ला लो, दुनिया को फना कर दो, दुनिया को मिटा दो, दुनिया को नस्तनाबूद कर दो। हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम इस काम के लिए हमेशा 24 घंटा खड़े हैं, सूर लिए हुए हैं, नहीं तो औंधते हैं, नहीं कुछ करते हैं, सिर्फ कान लगा करके इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह कब हुक्म देगा कि मैं सूर फूंक दूं। मेरे भाइयों, वो एक दिन आएगा जब हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर को फूंक देंगे, सूर को फूंक देंगे। वो एक ऐसा दिन होगा, वो ऐसा गिराने का दिन होगा कि आज दुनिया के अंदर पहाड़ें जो देख रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ें, ये पहाड़ें रुई की गालों की तरफ उड़ती फिरेंगी, रुई की गालों की तरफ उड़ती फिरेंगी। आप देखे होंगे जब खेत के अंदर कपास होता है और कपास जब फूट जाता है, जब उसकी रुई निकलती है और जब तेज हवाएं चलती हैं तो छोटे छोटे जर्रात के अंदर जो है गिरूह बन करके हल्का फुल्का जो है मकड़ी के जाले की शक्ल में जो है कपास उड़ने लगते हैं हवा चलने की वजह से। उसी तरीके से कयामत के दिन जब सूर फूंक दिया जाएगा, ये बड़ी बड़ी पहाड़ें उसी तरह उड़ती फिरेंगी, ये दुनिया टूट फूट कर पनाह हो जाएगा, सितारे टूट कर गिर जाएंगे, चांद सूरज टूट कर फना हो जाएगा। वो कयामत की हौलनाकी का मंजर होगा, इतना खतरनाक दिन होगा कि इंसान परेशान होगा। आज इंसान बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने में मसरूफ है, बड़े बड़ी घरें बनाने में मसरूफ हैं, बैंक बैलेंस करने में मसरूफ हैं। उस दिन वो चीजें काम नहीं आएंगी, बिल्डिंगें भी मस्मार हो जाएंगी, समंदरें भी खत्म हो जाएंगी, पहाड़ भी खत्म हो जाएंगी। जब पहली मर्तबा हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो तमाम चीज टूट फूट कर फना हो जाएगी। रिवायत के अंदर आता है कि पहली सूर फूंकने के साथ ही हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम भी गिर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें होंगी टूट फूट जाएगी, जितने भी जानदार होंगे मर जाएंगे, इंसान भी मर जाएगा। उस डरावनी आवाज को सुन करके रिवायत के अंदर आता है कि उस वक्त जो कयामत के इस्राफील अलैहिस्सलाम जो सूर फूंकेंगे, सबसे पहला शख्स जो होगा वो ऊंट के कजेवे में लिपटा हुआ होगा, वो सबसे पहले हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम की सूर की आवाज सुनेंगे, सूर फूंकने की आवाज सुनेंगे। सबसे पहले वो मरेगा, फिर दूसरे एक आदमी सुनेगा, वो मर जाएगा, फिर दुनिया के तमाम लोगों तक आवाज जाती जाएगी, तमाम लोग मरता चला जाएगा, इंसान मर जाएगा और इस्राफील अलैहिस्सलाम भी मर जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला इस्राफील अलैहिस्सलाम को जगाएंगे, इस्राफील अलैहिस्सलाम को जगाएंगे और फिर अल्लाह तबारक व तआला जब जगाएंगे तो वो जगेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर अपने सूर को उठाएंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देंगे, इस्राफील अब दोबारा तुम्हें सूर को फूंक दो। इस्राफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर को फूंक देंगे तो इंसान जिंदा होने लगेगा, इंसान जिंदा हो जाएगा, कब्र के मुर्दे भी जिंदे हो जाएंगे, कब्र से मिट्टी झाड़ते हुए सब खड़े हो जाएंगे और कयामत के दिन की तरफ मैदान हश्र की तरफ चलने लगेंगे। मैदान हश्र की तरफ तमाम लोग जमा हो जाएंगे और कयामत की जो हौलनाकी होगी, हश्र का जो मैदान होगा वो काफी तापनाक होगा। जमीन पित्तल की बना दी जाएगी, वो जमीन इतनी गर्म होगी जितनी गर्म आज हम लोग तावे के ऊपर रोटी पकाते हैं। तवा कितना गर्म होता है कि रोटी 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है, उससे कहीं ज्यादा गर्म जमीन हो जाएगी, ये पित्तल की जमीन हो जाएगी और इंसान के सर के ऊपर 7 सूरज होंगे, 7 सूरज इंसान के सर के ऊपर होंगे। अभी जनवरी का महीना है, अभी किसी किसी दिन इतनी तेज गर्मी हो जाती है कि आप दोपहर के समय जो है रोड पर अगर चले तो आपको एहसास होगा इतनी गर्मी है, अपने आप को तसव्वुर करते हैं कि इतनी ज्यादा गर्मी अभी जनवरी के महीने में, लोग परेशान हो जाता है। एक सूरज जो तकरीबन 98 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, तकरीबन इतनी दूरी से एक सूरज जब वो अपनी तापिश को छोड़ती है, अपनी धूप को छोड़ती है, अपनी रोशनी को छोड़ती है, तो नीचे हम जमीन पर इतने दूर की सूरज की जो है नीचे जब हम चलते हैं दोपहर के वक्त अपने आप को महसूस करते हैं कितनी गर्मी है, अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं गर्मी। तो अब हमें बताइए
हमें सोचने की जरूरत है कि जब कयामत के दिन एक नहीं 7 सूरज होंगे और इतने दूर पर नहीं होंगे, इतनी दूर नहीं बल्कि इंसान के सबसे थोड़े दूर पर होंगे, 2 फीट 2.5 फीट 1.5 फीट 1 फीट की दूरी पर वो सूरज होंगे। तो बताइए कि उस दिन कितनी गर्मी होगी। एक सूरज की गर्मी इतनी दूरी से हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दिन 7 सूरज की जो गर्मी होगी कैसे बर्दाश्त करेंगे। रिवायत के अंदर आता है कि उस दिन सूरज की गर्मी की वजह से इंसान पसीने में सराबोर होगा। इंसान अपने गुनाहों के, जितने भी इंसान गुनहगार होगा वो अपने गुनाहों की बदौलत जो है पसीने में डूबा हुआ होगा। किसी को पसीना जो है घुटनों तक होगा, किसी को पिंडली तक होगा, किसी को रान तक होगा, किसी को जो है कमर तक होगा, किसी को नाक तक होगा, किसी को पैर तक होगा, किसी को सीने तक होगा, किसी को छाती तक होगा, किसी को गर्दन तक होगा, किसी को मुंह तक होगा, किसी को नाक तक होगा, किसी को पेशानी तक होगा, कोई जो है किसी को पसीना सर तक होगा, कोई अपने पसीनों में तैर रहा होगा। ऐसा कयामत का मंजर होगा, ऐसा कयामत की हौलनाकी होगी। मेरे भाइयों कयामत की हौलनाकी से डरने की जरूरत है, कयामत की हौलनाकी से डरने की जरूरत है। और नमाज के अंदर कयामत की हौलनाकी से हिफाजत के वास्ते अपने आप को बचाने के लिए दुआ करें कि कयामत के दिन ऐसी जो है मंजर होगी, 7 सूरज होगी, इतनी गर्मी होगी, लेकिन उस गर्मी में भी अल्लाह तबारक व तआला, रिवायत के अंदर आता है कि 8 किस्म के ऐसे लोग होंगे, 8 किस्म के ऐसे लोग होंगे जो उस हौलनाकी के मंजर में भी किसी किस्म का डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। वो जो ऐशो आराम करेंगे वो लोग कौन होंगे? वो लोग वो होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत के साए में जगह दे देंगे। इस वजह से अपने नमाज के बाद जब दुआ करते हैं तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कल क़यामत के दिन तेरे रहमत के साए में जगह अता फरमाना। उन सायों में ज्यादातर जो होंगे नौजवानों की जमात होगी, लेकिन आज हमारे नौजवान सबसे ज्यादा नमाज में पीछे, सबसे ज्यादा सुस्ती, सबसे ज्यादा काहिली अगर कोई करते हैं अभी के जमाने में तो हमारे नौजवान कर रहे हैं। मस्जिदें वीरान है, 2-4 बड़े लोग आकर के, बूढ़े लोग आकर के नमाज पढ़ कर चले जाते हैं, लेकिन नौजवानों को इतनी ताकत नहीं होती कि जब वो अजान की आवाज सुनते हैं तो मस्जिद तक आए। मेरे भाइयों, अपने आप को कल क़यामत के दिन रहमत के साए में अगर जगह बनानी है तो मस्जिद को आबाद करना होगा। नौजवानों, सबसे ज्यादा नौजवानी की इबादत अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। रिवायत के अंदर आता है कि जो नौजवान नौजवानी में इबादत करता है, कल वो बूढ़ा हो गया और उसे वो इबादत करने की ताकत नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला बुढ़ापे में, जवानी में जो इबादत करता था बुढ़ापे में वो इबादत नहीं कर सकता है, तो इस इबादत का सवाब उसे बुढ़ापे में भी मिलेगा। मेरे भाइयों, इस वजह से हमें खास तौर से नौजवान भाइयों से गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी करें, मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करें। बूढ़े लोगों की तरफ मत देखें कि वो नहीं आते हैं, उनके तरफ नहीं देखना है। नौजवानों की फजीलत बहुत ज्यादा रिवायत के अंदर आया है। इसी वजह से नौजवान जो है, जो इतने भाई हैं, वो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा मस्जिद आने की कोशिश करें। जब आप लोग आएंगे तो फिर जो बूढ़े लोग 2-4 नहीं आते हैं वो भी आने की फिक्र करेंगे, इसलिए कि कल क़यामत के दिन जो है नौजवानों की एक बड़ी तादाद होगी, एक बड़ी तादाद जनसंख्या होगी जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में जगह बनाएंगे, और उसमें से आदल बादशाह भी होंगे। वक्त की किल्लत है, इंशाअल्लाह गुज़िश्ता जुमा में इस 8 शख्स के बारे में बताऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की क़यामत की हौलनाकी से हिफाजत फरमाए, और क़यामत से पहले दुनिया में से जाने से पहले जो है हम सबको मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए, मरते वक्त कलमे तय्यबा जुबान से जारी फरमाए, और जो है अपने आप को जो है कब वो कलमा जो है मरते वक्त जो है कलमा तय्यबा जारी होगा, जब हम इबादत करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है खात्मा बिल खैर फरमाएगा। और नमाज के बाद खात्मा बिल खैर के लिए दुआएं भी करनी है, और अच्छी मौत के लिए दुआएं करनी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अल्लाह से दुआ करो, किस चीज की? अच्छी मौत की। इसी वजह से दुआ करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी, आपको भी कहानी सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व तौफीक इल्ला बिल्लाह।